today's lecture, we will discuss the next point of the chapter ointment. Ointment is semi-solid dosage form. Okay. In the previous lecture, we will learn the definition of ointment. After that, classification of ointment. The classification of ointment, which is based on the basis of penetration first and on the basis of therapeutic uses. Okay. After that, on the basis of penetration, in that there are three sub point on the penetration of ointment. That is, first is epidermic ointment. As the name indicate, epidermic means on the drug or the ointment which is penetrate on the epidermic layer, okay, which not absorbs, which produces a local effect on the skin called as epidermic ointment. On the second one is that endodermic ointment. Endodermic ointment means, as the name indicate, the drug, the ointment which intended, which release, which absorb on the endodermic layer of the skin called as endodermic ointment. And the third one is that didermic ointment. As the name indicate, which intended, which use, which release the medicaments, ointment in the skin, which releases the drug in the systemic circulation and gives a therapeutic effect, okay, called as didermic ointment. After that, next one is that on the basis of therapeutic uses, in that there are sub points is included in the therapeutic uses. First is antibiotic ointments, antifungal ointments, anti-inflammatory ointments, antipruritic ointments, astringent ointments, anti-eczematous ointments and their examples. Okay. Next one is that keratolytic ointments, counter irritant ointments, anti-dandruff ointments, ointment used for psoriasis treatment, parasiticide ointments, protective ointments. After that, next one is that is the ointment basis. For the preparation of ointment, some of the procedures, some of the methods are included. ओके, तो जैसे कि एक फॉर्मुलेशन हम बना रहे हैं, तो ऑइंटमेंट में क्या होता है कि एक ऑइंटमेंट बेसिस होते हैं, तो उस बेसिस का यूज़ करते हुए, बेसिस का यूज़ जो होता है, बेसिस जो होते हैं ऑइंटमेंट के वो मस्ट होते हैं, उसके बिना ऑइंटमेंट नहीं किया जाता. तो ओके, तो जो ऑइंटमेंट बेसिस है तो क्या होता है, उसका एज ए व्हीकल वो यूज़ किया जाता है. ओके, डिज़ायर एक्शन उससे मिलती है. नेचर ऑफ मेडिकामेंट टू बी इनकॉर्पोरेटेड होता है. स्टेबिलिटी ऑफ ऑइंटमेंट उसकी देखी जाती है. ओके, तो ऑइंटमेंट बेसिस जो होता है हमारे ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन के अंदर वो मस्ट होता है, उसके बिना ऑइंटमेंट नहीं किया जाता. ओके, तो नेक्स्ट वन एक कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी किए थे इसके पहले के लेक्चर में. तो मेन पॉइंट वी हैव टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेसिस. तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेसिस के अंदर चार सब मेथड्स हैं जो कि हम आज के लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं. फर्स्ट वन इज दैट oleaginous basis, also called as hydrocarbon basis, absorption basis. Third one is emulsion basis and fourth one is water soluble basis. तो नेक्स्ट वन देख लेते हैं oleaginous basis. तो उसको हाइड्रोकार्बन बेसिस भी बोला जाता है. oleaginous basis are non-aqueous formulation which provides emollient and protective properties. तो जो oleaginous which contain oils, oleaginous, okay, are non-aqueous. obviously oleaginous oil है मतलब वो non-aqueous है. ओके, aqueous मतलब वो वाटर soluble होता है, non-aqueous मतलब वो वाटर insoluble होता है. ओके, जो ऑयल होता है वो non-aqueous होता है obviously. विच प्रोवाइड्स इमोलिएंट मतलब एक सूथिंग, एक स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड किया, एक टेक्सचर मिलता है हमारे स्किन के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर एक स्मूथ टेक्सचर दिखाई देता है हमारे बॉडी पर, तो उसे हम इमोलिएंट सूथिंग इफेक्ट ऐसे बोलेंगे उसे. एंड विच गिव्स प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़, एक प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ नेचर हमारे स्किन के ऊपर मिलता है और उसके एक आइडियल प्रॉपर्टीज़ होती है oleaginous बेसिस की. ओके, that is we have to called as hydrocarbon basis. Okay, next one is that is it is difficult to remove hydrocarbon bases from skin due to their oily nature. Okay,
ऑब्वियसली जहाँ पर ऑइंटमेंट होता है या कोई ऑयली प्रिपरेशन होता है वो वाटर से, जैसे हम तेल होता है वो वाटर से सोल्यूबल होता है क्या, मतलब वाटर से वो रिमूव होता है क्या, ऑयल वाटर से रिमूव होता है, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट करेक्ट। ओके, तो ऑयल जो होता है वाटर से रिमूव नहीं किया जाता है। ओके, तो डिफ़िकल्टी है इस टाइप के ऑइंटमेंट को वाटर से रिमूव करना। ओके, वही बताया गया है जो कि ऑलेजिनस बेसिस होते हैं। ओके, इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव हाइड्रोकार्बन बेसिस फ्रॉम स्किन ड्यू टू देयर ऑयली नेचर। एग्जाम्पल हार्ड पैराफिन, वाइट और येलो सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन एंड मिनरल ऑयल एक्सेट्रा। ओके, तो इसे ओलेजिनस बेसिस ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट, ओलेजिनस बेसिस के अंदर सब पॉइंट है। ओके, उसके अंदर फर्स्ट जो है पेट्रोलेटम, दैट इज वी हैव टू कॉल्ड एज सॉफ्ट पैराफिन। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट हार्ड पैराफिन एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज दैट लिक्विड पैराफिन। ओके, तो तीन जो सब पॉइंट है जो कि ओलेजिनस बेसिस के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम पेट्रोलेटम, दैट इज सॉफ्ट पैराफिन। इट इज़ प्यूरिफाइड मिक्सचर ऑफ सेमी सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलेटम। ओके, ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। तो एक प्यूरिफाइड मिक्सचर है जो कि सेमी सॉलिड हाइड्रोकार्बन से ऑब्टेन किया जाता है। एक सेमी सॉलिड हाइड्रोकार्बन जो होता है वहाँ से ये पेट्रोलेटम और सॉफ्ट पैराफिन जो है ऑब्टेन किया जाता है। एक प्यूरिफाइड मिक्सचर है सेमी सॉलिड हाइड्रोकार्बन का एक सेमी सॉलिड एक प्योर मिक्सचर है और उसको ऑब्टेन किया जाता है पेट्रोलियम से। ऑब्टेन किया जाता है पेट्रोलेटम को, सॉफ्ट पैराफिन को। उसका मिक्सचर कैसे है, सेमी सॉलिड हाइड्रोकार्बन उसका मिक्सचर है, प्यूरिफाइड मिक्सचर। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्ट पैराफिन, वन इज कॉल्ड एज येलो एंड अदर इज वाइट। ओके, जो सॉफ्ट पैराफिन है, जो पेट्रोलेटम है, उसके दो सब पॉइंट है, दो सब उसके टाइप है सॉफ्ट पैराफिन के, एक येलो है और दूसरा वाइट है। सॉफ्ट पैराफिन एंड देन सॉफ्ट पैराफिन के दो टाइप है, एक येलो पैराफिन है, दूसरा वाइट पैराफिन है। तो उसके आगे देखते हैं, वाइट सॉफ्ट पैराफिन प्रिपेयर्ड बाय ब्लीचिंग द येलो सॉफ्ट पैराफिन। तो जो वाइट सॉफ्ट पैराफिन है, जो कि सॉफ्ट पैराफिन जो पेट्रोलेटम, इसके दो टाइप है, एक येलो दूसरा वाइट, जो कि तो आगे बताते हैं यहाँ पर इस स्लाइड में। वाइट सॉफ्ट पैराफिन जो है उसको प्रिपेयर किया जाता है ब्लीचिंग करके। येलो सॉफ्ट पैराफिन जो है उसको ब्लीचिंग करके, उसका एक मेथड है ब्लीचिंग की, उस मेथड को ब्लीचिंग का जो मेथड है उसको फॉलो करते हुए हमने वाइट सॉफ्ट पैराफिन को प्रिपेयर किया है। ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉफ्ट पैराफिन इज दैट 38 to 56 डिग्री सेल्सियस, जो कि मेल्टिंग पॉइंट है सॉफ्ट पैराफिन का 38 से 56 डिग्री सेल्सियस है। वाइट सॉफ्ट पैराफिन नॉट बी यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट, जो कि वाइट सॉफ्ट पैराफिन है वाइट का, उसको ब्लीचिंग करके हमने ब्लीचिंग प्रोसेस से हमने बनाया है। ओके, तो जो होता है वाइट सॉफ्ट पैराफिन नॉट बी यूज, जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होते हैं, जो आई से रिलेटेड प्रिपरेशन होता है, ऑइंटमेंट समझो, आई ड्रॉप है या कोई भी जो ऑइंटमेंट है, लेकिन जो आई ऑइंटमेंट होता है वहाँ पर वाइट सॉफ्ट पैराफिन का यूज़ नहीं किया जाता। ओके, बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग। ओके, ऑब्वियसली मैंने आप पहले बताया था जो कि ब्लीचिंग से प्रिपेयर किया जाता है वाइट सॉफ्ट पैराफिन। येलो सॉफ्ट पैराफिन को ब्लीच करते हुए वाइट सॉफ्ट पैराफिन को बनाया जाता है, तो उसकी जो ब्लीचिंग एजेंट होते हैं वो वाइट सॉफ्ट पैराफिन के अंदर आ जाते हैं। तो इसके लिए विच कॉजेस इरिटेशन इन द आई, फॉर दैट पर्पज वी हैव टू नॉट यूज द वाइट सॉफ्ट पैराफिन इन द आई ऑइंटमेंट। ओके, तो ये था सॉफ्ट पैराफिन, जो कि इसमें याद रखना है आपको एक ओलेजिनस बेसिस के अंदर। फर्स्ट वन जो हमने देखे थे पेट्रोलेटम, जो कि सॉफ्ट पैराफिन बोला जाता है। इसके अंदर दो टाइप है, एक तो बोलेंगे येलो पैराफिन और दूसरा है वाइट पैराफिन। जो कि वाइट पैराफिन होता है, वाइट पैराफिन येलो पैराफिन को ब्लीच करते हुए उसको बनाया जाता है वाइट पैराफिन को। और जो सॉफ्ट पैराफिन का मेल्टिंग पॉइंट है जो कि है 38 से 56 डिग्री सेल्सियस। ओके, और जो सॉफ्ट वाइट पैराफिन है उसको हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन
के लिए सच एज आई ऑइंटमेंट उसके अंदर हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर जो ब्लीचिंग एजेंट होता है जो कि वो येलो पैराफिन से हमने प्रिपेयर करते हुए जो उसके कुछ एजेंट्स वाइट सॉफ्ट पैराफिन के अंदर आते हैं, फॉर दैट पर्पस वी हैव टू नॉट यूज दिस वाइट सॉफ्ट पैराफिन इन द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम हार्ड पैराफिन, जो कि ओलेजिनस बेसिस के अंदर दूसरा टाइप है ओलेजिनस बेसिस का। फर्स्ट पेट्रोलेटम था, सॉफ्ट पैराफिन था। सेकंड वन इज दैट हार्ड पैराफिन। इट इज़ अ प्यूरिफाइड मिक्सचर ऑफ सॉलिड हाइड्रोकार्बन। एक प्यूरिफाइड मिक्सचर होता है सॉलिड हाइड्रोकार्बन का, एक प्यूरिफाइड मिक्सचर है, एंड आप इसको ऑब्टेन किया जाता है ऑब्वियसली पेट्रोलेटम से। सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड हाइड्रोकार्बन का प्योरीफाइड मिक्सचर है, ऑब्टेन किया जाता है पेट्रोलेटम से। ओके, इट इज़ अ कलरलेस है, और वी हैव टू सेट दैट वाइट ट्रांसलूसेंट ओडरलेस एंड टेस्टलेस वैक्स लाइक सब्सटेंस। ओके, इट इज़ अ कलरलेस और वाइट ट्रांसलूसेंट और ऑर्डरलेस टेस्टलेस वैक्स लाइक सब्सटेंस है ये, एंड इट इज़ यूज टू हार्डन और सॉफ्टेन द ऑइंटमेंट बेस। तो हार्ड पैराफिन जो है ऑब्वियसली तीनों में भी आपको यही लिखना है, ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलेटम। ये जो पहले वाला था सेमी सॉलिड हाइड्रोकार्बन था पेट्रोलेटम, और जो हार्ड पैराफिन है वो ऑब्वियसली हार्ड मतलब एज द नेम इंडिकेट हार्ड मीन्स हार्ड होगा, तो सॉलिड हाइड्रोकार्बन है वो। पहले वाला सेमी सॉलिड था, हार्ड पैराफिन सॉलिड हाइड्रोकार्बन है, ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलेटम। ओके, कलरलेस, वाइट ट्रांसलूसेंट, ओडरलेस एंड टेस्टलेस वैक्स लाइक सब्सटेंस है, एंड इट इज़ यूज्ड टू हार्डन और सॉफ्टन द ऑइंटमेंट बेस। जो ऑइंटमेंट जो बेस होता है उसको हार्ड करने के लिए और सॉफ्ट करने के लिए, दोनों भी हार्ड करने के लिए भी यूज़ किया जाता है और सॉफ्टन करने के लिए भी ऑइंटमेंट बेसिस के अंदर इस हार्ड पैराफिन को यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट लिक्विड पैराफिन। तो लिक्विड पैराफिन क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन, एज द नेम इंडिकेट लिक्विड मतलब लिक्विड होगा। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम बाय डिस्टिलेशन। ओके, इसमें एक नेक्स्ट प्रोसेस की है इन्होंने, इसका डिस्टिलेशन किया है। जो पेट्रोलेटम है, पेट्रोलियम है, जो कि ऑब्टेन किया जाता है पेट्रोलेटम से, पेट्रोलियम से। तो एक डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हुए हमने जो सिंपल डिस्टिलेशन देखे थे, जो कि एक डिस्टिलेशन प्रोसेस हमने फार्मास्यूटिकल्स में जो स्टडी किए थे, सिंपल डिस्टिलेशन तो एक्सेट्रा। इस डिस्टिलेशन प्रोसेस से हमने लिक्विड पैराफिन का ऑब्टेन किया है, उसको एक प्रोसेस से हमने बनाया है। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइट मिनरल ऑयल और लिक्विड पेट्रोलियम। तो ये लिक्विड जो पैराफिन होता है, एक डिस्टिलेशन प्रोसेस से हमने इसको एक लिक्विड हाइड्रोकार्बन को बनाया है। इसका जो कंसिस्टेंसी है लिक्विड हाइड्रोकार्बन है, ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से ऑब्वियसली हमने ऑब्टेन करना है, डिस्टिलेशन प्रोसेस से लिक्विड पैराफिन को हमने बनाया है, उसको ऑल्सो कॉल्ड एज वाइट मिनरल ऑयल बोला जाता है इसको। ओके, और इसको हम लिक्विड पेट्रोलियम भी ऐसे कहते हैं। ओके, इट इज़ कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, इट इज़ सोल्यूबल इन एथर एंड क्लोरोफॉर्म, बट इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल। ओके, ये जो लिक्विड पैराफिन है ये कलरलेस है, ओडरलेस है एंड ऑल्सो टेस्टलेस। इट इज़ सोल्यूबल, ये सोल्यूबल है इथर के अंदर और क्लोरोफॉर्म के अंदर, लेकिन ये इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर और अल्कोहल के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज nowadays oleaginous bases are not used commonly because they are greasy। यहाँ पर क्या बताया है, जो फिलहाल nowadays में क्या होता है कि oleaginous जो बेसिस है नॉट यूज्ड कॉमनली, ज़्यादा से इसका यूज़ नहीं किया जाता है, बिकॉज दे आर बहुत ग्रेजी मतलब चिकट असतात ते, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव फ्रॉम द स्किन एंड क्लॉथिंग। तो ये बहुत ज़्यादा से चिकट होता है, तो उससे हम स्किन से रिमूव भी नहीं कर सकते इजीली, डिफ़िकल्टी होता है। और अगर क्लॉथिंग मतलब अगर कपड़े को भी ये कहीं लगा तो रिमूव करने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो नाउअडेज दिस कैन नॉट बी मोर कॉमनली यूज इन द प्रिपरेशन। ओके, दे रिटेन बॉडी हीट विच में प्रोड्यूस एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ वार्मथ। तो यहाँ पर क्या बताया कि दे रिटेन बॉडी हीट विच में प्रोड्यूस एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ वार्मथ, मतलब ये जैसा लिक्विड पैराफिन अगर बॉडी पे कहीं लगा, अगर होगा लगा
तो क्या होता है कि रहने के बाद क्या होता है कि अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस होता है और अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। मतलब क्या करता है जो लिक्विड पैराफिन है, जैसे हम प्रिपरेशन के अंदर कोई ऑइंटमेंट के अंदर इसको हमने डाला, ज़्यादा प्रमाणात जरासं टाकलं तर काय होणार आहे, ते बॉडीवर रिटर्न राहणार आहे, म्हणजे बॉडीवर तसंच राहणार आहे सरफेसवर, आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे की पेशंटला किंवा अनकम्फर्टेबल फीलिंग होणार आहे किंवा गरम थोडंसं हीट प्रोड्यूस होणार आहे। ओके, दे डू नॉट हेल्प इन एब्सॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट। और जो लिक्विड पैराफिन का अगर हमने यूज़ किया एज ऑइंटमेंट के अंदर तो क्या होता है कि एब्सॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट जो है, जो एक्टिव मेन इंग्रेडिएंट है हमारा ऑइंटमेंट के अंदर जो इंग्रेडिएंट है हमारा, तो उसका एब्सॉर्प्शन नहीं होता बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर। तो इसीलिए लिक्विड पैराफिन का नाउअडेज वी हैव टू नॉट यूज़ मोर कॉमनली इन द प्रिपरेशन। ओके, ये 3 हमने स्टडी कर लिए, पेट्रोल स्टडी कर लिए, हार्ड पैराफिन स्टडी कर लिए और लिक्विड पैराफिन। तो पेट्रोल तो इजी है ओलेजिनस बेसिस, जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेसिस के अंदर फर्स्ट हमने ओलेजिनस बेसिस जो स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर पेट्रोल फर्स्ट है, सेकंड हार्ड पैराफिन है और थर्ड जो है लिक्विड पैराफिन। जो पेट्रोल है और वी कैन से दैट सॉफ्ट पैराफिन, वो एक मिक्सचर है सेमी सॉलिड हाइड्रोकार्बन का, और उसे हमने ऑब्टेन किया है पेट्रोलियम से। ओके, इसके 2 टाइप हैं, एक जो है येलो पैराफिन है, दूसरा है वाइट पैराफिन। तो जो वाइट पैराफिन है, वाइट सॉफ्ट पैराफिन, उसको हमने ब्लीच करके जो येलो सॉफ्ट पैराफिन को ब्लीच करते हुए हमने वाइट सॉफ्ट पैराफिन को प्रिपेयर किया है। जो सॉफ्ट पैराफिन है, जो पेट्रोल है, उसका ब्लीचिंग पॉइंट है 38 to 56 डिग्री सेल्सियस। और ये जो वाइट सॉफ्ट पैराफिन है, हमने इसका यूज़ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के अंदर नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट जो है, येलो सॉफ्ट पैराफिन के ब्लीचिंग एजेंट कुछ इसके अंदर दिखाई देते हैं। इसके वास्ते विच क्या होता है, विच कॉजेस इरिटेशन इन द आइज। फॉर दैट पर्पज वी हैव टू नॉट यूज दिस white soft paraffin in the ophthalmic preparation. Okay, next one is that hard paraffin. Obviously, as the name indicate, hard means solid hydrocarbon obtained from petroleum. Okay, colorless, odorless and also tasteless, wax like substance है, and it is used to which is used to harden and soften the ointment bases. Okay, next one is that liquid paraffin. It consists of mixture of liquid hydrocarbons obtained from petroleum. It is also called as white mineral oil or liquid petroleum oil. Okay, and it is colorless, odorless, tasteless, and it is soluble in ether and chloroform, but it's insoluble in water and alcohol. Okay, nowadays oleaginous bases are not commonly used in the preparation. Okay, because of that it is very greasy, so difficulty to remove from skin. Okay, and clothing. Okay, and they retain body heat. बॉडी की हीट खूप म्हणजे जी बॉडीची हीट असते ती खूप रिटेन होते, म्हणजे ती लावल्यानंतर काय होणार आहे, थोडंसं अनकम्फर्टेबल फील होणार आहे आपल्याला। जे लिक्विड पॅराफिनचं आपण प्रिपरेशन किंवा ऑइंटमेंट यूज करणार तर काय होतं की ते बॉडीची हीट जी असते त्याला रिटेन करतं आणि आपल्याला अनकम्फर्टेबल फिलिंग होतं, त्यासाठी हे जास्त प्रमाणात आपण यूज करणार नाही आहेत। दे डू नॉट हेल्प इन ॲब्सॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट्स। जे ॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट जे ड्रग आपण त्या ऑइंटमेंटमध्ये टाकलेलं आहे तर त्याचं ॲब्सॉर्प्शन आपल्याला आपल्या स्किनमध्ये किंवा स्किनच्या लेअर असते जे त्याच्यामध्ये आपल्याला भेटणार नाही, त्यासाठी लिक्विड पॅराफिन मोस्टली आपण यूज करत नाहीत। ओके, तो ये था ओलेजिनस बेसिस। नेक्स्ट देख लेते हैं एब्सॉर्प्शन बेसिस। Absorption basis. Okay, in the absorption basis contains small amount of absorption. Obviously the ointment which contain absorption basis, which can this ointment when we have to apply on our body, which this ointment absolutely absorbs in the skin layer called as absorption basis. Okay, as the name indicate, in the absorption basis contain small amount of water and they provide relatively less emollient properties than hydrocarbon bases.
इन द एब्सॉर्प्शन बेसिस कंटेन, क्या बोलता है यहाँ पर, एक स्मॉल अमाउंट में वाटर इसके अंदर होता है प्रेजेंट, एंड दे प्रोवाइड रिलेटिवली लेस इमोलेंट है, मतलब इमोलेंट मतलब जे सुथिंग म्हणजे एक सॉफ्टनेस जे असतं, जी प्रॉपर्टीज असते सॉफ्टनेसची, काय म्हणतं आहे ह्याच्या जे एब्सॉर्प्शन बेसिस है उसके अंदर जो इमोलेंट प्रॉपर्टीज़ है वो कम है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन बेसिस। जो हाइड्रोकार्बन बेसिस थे उसके अंदर इमोलेंट प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा थी। ऑब्वियसली जो भी ऑयली प्रिपरेशन होते हैं, ओके, जो ऑयली प्रिपरेशन होते हैं उसकी जो सुथिंग, जो सॉफ्टनेस जे असतं, इमोलियंट जे प्रॉपर्टीज असतं ते ऑब्वियसली जास्त असते ॲज कम्पेयर टू ॲब्सॉर्प्शन और वाटर कंटेनिंग प्रिपरेशन, ओके। तो हाइड्रोकार्बन बेसिस मतलब जो ओलेजिनस बेसिस थे उसे ही हम हाइड्रोकार्बन बेसिस बोलते हैं। दो ओलेजिनस बेसिस थे उसे हम हाइड्रोकार्बन बेसिस बोलेंगे। तो जो इमोलियंट प्रॉपर्टीज़ है तो वो ज़्यादा है हाइड्रोकार्बन बेसिस और ओलेजिनस बेसिस की एज़ कम्पेयर टू एब्सॉर्प्शन बेसिस। तो एब्सॉर्प्शन बेसिस के अंदर स्मॉल अमाउंट में वाटर होता है, ओके। दिस बेसिस आर जनरली अनहाइड्रस सब्सटेंसेस। ये जो बेसिस है एब्सॉर्प्शन बेसिस अनहाइड्रस सब्सटेंस है वो, एंड विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एब्सॉर्बिंग कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ वाटर बट स्टिल रिमेनिंग देयर ऑइंटमेंट लाइक कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर जैसे हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो एब्सॉर्प्शन बेसिस है इसके अंदर वाटर है स्मॉल क्वांटिटी में, तो यहाँ ये अनहाइड्रस है विच हैव प्रॉपर्टी फॉर एब्सॉर्बिंग कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ वाटर। ओबियसली वाटर है तो ये वाटर एब्सॉर्ब करता है ऑइंटमेंट के अंदर ये, तो और क्या करता है बट स्टिल रिमेनिंग देयर ऑइंटमेंट लाइक कंसिस्टेंसी, ओके। तो ये जैसे भी हम बॉडी पर लगाएंगे तो एज अ उसकी ऑइंटमेंट कंसिस्टेंसी हमें दिखाई देगी, ओके। दे हैव टू टाइप्स, एब्सॉर्प्शन जो बेसिस है इसके दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज नॉन इमल्सिफाइड बेसिस एंड सेकंड इज वाटर इन ऑयल इमल्शन बेसिस। नॉन इमल्सिफाइड बेसिस एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन बेसिस, ये दो टाइप हैं एब्सॉर्प्शन बेसिस के। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसके टाइप। नॉन इमल्सिफाइड बेसिस एंड सेकंड इज वाटर इन ऑयल इमल्शन बेसिस। जैसे नॉन इमल्सिफाइड देखेंगे हम पहले, दोज बेसिस absorb water and aqueous solution producing W by oil emulsion. Example, wool fat, wool alcohol and beeswaxes. जो नॉन इमल्सिफाइड बेसिस जो होते हैं ना, जो कि एब्सॉर्प्शन बेसिस में प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप हैं इसके। एब्सॉर्प्शन बेसिस के दो टाइप हैं, एक तो नॉन इमल्सिफाइड बेसिस है और दूसरा वाटर इन ऑयल इमल्शन बेसिस है। जो नॉन इमल्सिफाइड बेसिस जो है वो वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं और एक्वस सॉल्यूशन को भी एब्सॉर्ब करते हैं। और वो क्या प्रिपेयर करते हैं, मतलब जो बेस है ये नॉन इमल्सिफाइड बेस जो है वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं और एक्वस जो सॉल्यूशन होता है वो उसको प्रोड्यूस करके क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन को क्या बनाते हैं, वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाते हैं। मतलब वाटर को एब्सॉर्ब करके एक्वस सॉल्यूशन को भी एब्सॉर्ब करके वाटर इन ऑयल इमल्शन, मतलब समझ में आता है आपको। ऑयल जो है कंटिन्यूस फेज में है और जो वाटर है ते कमी प्रमाणात त्याच्यात यूज केलेलं आहे, ओके। एक्झाम्पल, वूल फॅट, वूल अल्कोहोल अँड बीजवॅक्सेस एक्सेट्रा इज कॉल्ड ॲज नॉन इमल्सिफाइड बेसिस। म्हणजे वूल फॅट, वूल अल्कोहोल आणि बीजवॅक्स काय करतं माहिती आहे का आपल्या प्रिपरेशनमध्ये, ते वॉटरला ॲब्सॉर्ब करतं आणि ॲक्वस सोल्युशनला जे आहेत आपल्या प्रिपरेशनमध्ये त्याला ॲब्सॉर्ब करतं आणि एक इमल्शन टाईपमध्ये ते प्रिपरेशन बनवतं, सच ॲज वॉटर इन ऑइल टाईप इमल्शन, ओके। वॉटर इन ऑइल इमल्शन, ओके। तो नेक्स्ट है वाटर इन ऑयल इमल्शन बेसिस। नॉन इमल्सिफाइड पहले देख लेते हैं हमने, वाटर इन ऑयल इमल्शन देख लेते हैं। दोज बेसिस हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एब्सॉर्बिंग मोर वाटर एंड हैव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इमल्सिफाइड बेसिस। मतलब क्या है कि ये वाटर इन ऑयल टाइप का जो इमल्शन बेस है एक, जो कि एब्सॉर्प्शन बेसिस में ये दूसरा टाइप है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वाटर को एब्सॉर्ब करने की जो प्रॉपर्टी है, जो हमारा ऑइंटमेंट, एक सपोज हम ऑइंटमेंट का प्रिपरेशन बना रहे हैं उसके अंदर ये बेसिस हमने ऐड करने होते हैं। मतलब पता है कि आपको एक ऑइंटमेंट का जो बेस बनाते हैं, एक ऑइंटमेंट बनाते हैं, तो ये सारे बेस
हमने अलग अलग तरीके के ऑइंटमेंट को यूज़ करना होता है। ऊल जो फैट होता है वो अलग जो ऑइंटमेंट की कैटेगरी होती है, कैटेगरी वाइज हमने ऑइंटमेंट प्रिपेयर करना होता है। तो उसके डिफरेंट बेसिस हैं, कौन सा बेस किस इंग्रेडिएंट को सूटेबल है। एक ऑइंटमेंट का जो बेस है एक अलग इंग्रेडिएंट को सूटेबल है, मतलब उसकी जो एब्सॉर्प्शन की जो लेयर है, उसके लेवल है, उसकी जो कैटेगरी है, उसको देखते हुए हमने एक ऑइंटमेंट प्रिपेयर करना होता है। ओके, तो जो वाटर इन ऑयल इमल्शन बेसिस है, ये इसकी भी जो कैटेगरी क्या है, ज़्यादा वाटर एब्सॉर्ब करता है ये। और उसकी जो कैटेगरी है जो नॉन इमल्सिफाइड जो सब्सटेंस है, जैसे कि ऊल फैट, ऊल अल्कोहल, उसी तरह से इसकी भी कैटेगरी है, प्रॉपर्टीज़ है। एग्जाम्पल हाइड्रस, मतलब थोड़ा क्या बोले, एक्स्ट्रा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्सॉर्ब करता है, मतलब ओके वहाँ थोड़ा सा कम होता है। जो नॉन इमल्सिफाइड बेसिस के अंदर वाटर एब्सॉर्ब होता है लेकिन थोड़ा कम होता है। लेकिन वाटर इन ऑयल इमल्शन जो बेसिस है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्सॉर्ब किया जाता है जब हम हमारा ऑइंटमेंट प्रिपेयर करते हैं तब। तो एग्जांपल हाइड्रस वूल फैट वी हैव ऑल्सो कॉल्ड एज लैनोलिन। ओके, तो ऊल इसके अंदर जो एक दो टाइप हमने देख लिए थे, एब्सॉर्प्शन बेसिस के अंदर दो टाइप थे, एक नॉन इमल्सिफाइड बेसिस एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन बेसिस। तो अब इसके अंदर सब पॉइंट है जो कि एब्सॉर्प्शन बेसिस कहा जाता है इसको। ओके, नॉन इमल्सिफाइड के कुछ एग्जांपल है, वाटर इन ऑयल इमल्शन के कुछ एग्जांपल है। वूल फैट जो है, वूल फैट नॉन इमल्सिफाइड बेसिस बोल के कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अनहाइड्रस लैनोलिन। ओके, वूल फैट को अनहाइड्रस लैनोलिन कहा जाता है। इट इज़ प्यूरिफाइड फैट लाइक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वूल ऑफ शीप। जो शीप होती है उसकी ऊल से इसको प्रिपेयर किया जाता है वूल फैट को। ओके, इट कैन बी अब्सॉर्ब्स अबाउट 50% ऑफ इट्स वेट ऑफ वाटर। मतलब क्या होता है कि जितना वेट है, वाटर का जितना वेट है उतनी तरह से उसको वाटर को 50% वेट में एब्सॉर्ब करता है वाटर को वूल फैट। ओके, जितना वूल फैट, सपोज हमने 50 ग्राम वूल फैट लिया है तो 50 ml वाटर को वो एब्सॉर्ब करता है। ओके, so it is used in ointment where the proportion of water and aqueous liquids too large। मतलब वूल फैट को कहाँ यूज़ किया जाता है, कौन से ऑइंटमेंट में, मतलब कि जो ऑइंटमेंट हमने प्रिपेयर करते हैं तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हमने वाटर उसमें ऐड करना होता है तो तब वूल फैट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वूल फैट को एब्सॉर्ब, जो वूल फैट है वाटर को ज़्यादा क्वांटिटी में एब्सॉर्ब करता है, इससे हमारा ऑइंटमेंट अच्छे से प्रिपेयर होता है। इसलिए जहाँ पर जिस ऑइंटमेंट में हमने वाटर का कंटेंट ज़्यादा लेना होता है वहाँ पर हमने वूल फैट का यूज़ करना है। ओके, इट इज़ मेनली यूज्ड इन आई ऑइंटमेंट। ओके, आई का जो ऑइंटमेंट होता है वहाँ पर इसको हमने यूज़ करना है। नेक्स्ट वूल अल्कोहल। ओके, वूल अल्कोहल भी है जो कि नॉन इमल्सिफाइड बेसिस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वूल फैट बाय ट्रीटिंग विथ अल्कली एंड सेपरेट आउट कोलेस्ट्रॉल एंड अदर अल्कोहल्स। मतलब इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वूल फैट से, वूल का जो फैट, वूल फैट जो है हमारा, वहाँ से ही इसको प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन उसको ट्रीट किया जाता है अल्कली के साथ। अल्कली के साथ उसका एक रिएक्शन की जाती है और उसको सेपरेट आउट किया जाता है कोलेस्ट्रॉल एंड अदर अल्कोहल से। ओके, एंड इट कंटेन्स नॉट लेस दैन 30% ऑफ कोलेस्टेरॉल। ओके, तो जैसे कि अल्कली के साथ हमने रिएक्शन करी वूल फैट की, तो उससे हमने उसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारा जो हमारा सेपरेट किया हुआ क्वांटिटी है उसको हमने कोलेस्टेरॉल और अदर अल्कोहल से उसको सेपरेट करेंगे वूल अल्कोहल को। उसकी वजह से क्या होता है कि जो कोलेस्टेरॉल की जो क्वांटिटी है, जो है क्वांटिटी उसके अंदर 30% दिखाई देती है वूल अल्कोहल के अंदर। ओके, क्योंकि हमने सेपरेट किया है कोलेस्टेरॉल से तो 30% उसका क्वांटिटी वूल अल्कोहल के अंदर दिखाई देगा। इट इज़ यूज्ड एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट। दिस वूल अल्कोहल इज ऑल्सो यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन। मतलब जो वूल अल्कोहल है इमल्सिफाइंग एजेंट म्हणून पण त्याचा यूज केलं जाते ऑइल इन वॉटरच्या इमल्शनमध्ये. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग द टेक्स्चर, स्टेबिलिटी एंड इमोलियंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन. इसका यूज़ किया जाता है वूल अल्कोहल का टेक्सचर बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी और इमोलियंट प्रॉपर्टीज़ ऑयल इन वाटर का जो इमल्शन होता है
उसका टेक्सचर बढ़ाने के लिए स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए और इमोलेंट प्रॉपर्टीज बढ़ाने के लिए वूल अल्कोहल का यूज किया जाता है ॲज इमल्सिफाइंग एजंट म्हणून. त्यानंतर नेक्स्ट आपलं त्याच्यामध्ये एक पॉईंट आहे ॲब्सॉर्प्शन बेसिसमध्ये बीजवॅक्स. ओके, वूल अल्कोहलच्या नंतर बीजवॅक्स. इट इज प्युरिफाईड वॅक्स आहे ऑप्टेन फ्रॉम हनीकॉम्ब ऑफ बीज. जे मधमाशा असतात ना त्यांचं जे हनीकॉम्ब असतं त्यापासून बीजवॅक्स बनवलं जातं. इट इज अवेलेबल इन येलो अँड व्हाईट फॉर्ममध्ये. व्हाईट बीजवॅक्स प्रिपेअर्ड बाय ब्लिचिंग ट्रीटमेंट. जे व्हाईट बीज वॅक्स असतं येलोला ब्लीच करून ते बनवलं जातं. इट इज यूज्ड फॉर स्टिफनिंग एजंट इन पेस्ट अँड ऑइंटमेंट. ॲज अ स्टिफनिंग एजंट म्हणून बीज वॅक्सचं आपण यूज केलं जातं पेस्ट आणि ऑइंटमेंटमध्ये. ओके, त्यानंतर इथं आपण एक पॉईंट राहिलेला आपलं हायड्रस वूल फॅट म्हणून एक असतं जे 4th पॉईंट आहे. ओके, हायड्रस वूल फॅट. इट इज प्युरिफाईड फॅट लाईक सबस्टन्स आहे ऑप्टेन केलं जातं वूल शीपपासून. ओके, हायड्रस वूल फॅट. ओके, आणि त्याला आपण लॅनोलिन पण म्हणूयात. ओके, इट इज इनसोल्युबल इन वॉटर बट सोल्युबल इन इथर अँड क्लोरोफॉर्म. ओके, हायड्रस वूल फॅट इज मिक्सचर ऑफ 70% W/W वेट बाय वेट वूल फॅट अँड 30% वेट बाय वेट प्युरिफाईड वॉटर. ओके, एक हायड्रस वूल फॅट म्हणून पण एक पॉईंट आहे. वूल फॅटच्या नंतर हायड्रस वूल फॅट म्हणून पण यूज केलं जातं जे की लॅनोलिन त्याला आपण म्हणूयात. ओके, त्यानंतर ॲडव्हान्टेजेस ऑफ ॲब्सॉर्प्शन बेसिस एक आहे. काय ॲडव्हान्टेज आहेत ह्या ॲब्सॉर्प्शन बेसिसचे? कम्पॅटेबल विथ अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकामेंट. जे जास्त मेडिकामेंट म्हणजे कम्पैटेबल म्हणजे ज़्यादा से ज़्यादा इंग्रेडिएंट और जो ड्रग हम यूज़ करते हैं ऑइंटमेंट बेसिस के अंदर, उसके अंदर एक कम्पैटेबल मतलब उसके साथ हम ले सकते हैं डिफरेंट ड्रग. हमने इस ऑइंटमेंट का जो बेसिस है एब्सॉर्प्शन जो बेसिस है सच एज वूल फैट, हाइड्रस वूल फैट, वूल अल्कोहल, बीजवैक्स, इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग हम कम्पैटेबल मतलब यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं उसका प्रिपरेशन. Absorbs large quantity of water and aqueous substance, okay, which absorbs this type of ointment absorption basis, which absorbs large quantity of water and aqueous basis also. Okay, relatively heat stable है ये. Emulsified as well as anhydrous form can be used. Okay, it is used as emulsifying agent also. Okay, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है. आपने इसके सारे जो चैप्टर हमारा चल रहा है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑइंटमेंट, इसके अंदर हम ओलेजिनस एक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेसिस हम स्टडी कर रहे हैं. उसके बाद कुछ फैक्टर स्टडी करेंगे, उसके बाद मेथड है इमल्शन की, उसके बाद स्टोरेज एंड लेबलिंग देख लेंगे. ओके.